Hello students, my name is Dr. Bugna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college, universities in Dehradun. Today I will teach you macroeconomics. In macroeconomics I will teach you monopolistic competition. I have already uploaded many videos in my YouTube channel. More than 100 videos I have already uploaded in my YouTube channel related with economics. Today I will teach you monopolistic competition in market. So first of all I will write down what is monopolistic competition. Monopolistic, chapter name is market. Monopolistic competition, very important. So what is monopolistic competition? So monopolistic competition means it is a market structure in which there are many firms. It is a market structure. It is a market structure in which there are many firms. In which there are many firms. In which there are many firms selling closely related but we can say unidentical commodity, very simple. It is a market structure in which there are many firms. बहुत से firms होते हैं selling closely related, बहुत से प्रोडक्ट जो होते हैं closely related होते हैं आपस में, but unidentical commodities जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, कई एग्जाम्पल हैं इसके. ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, हम वी कैन से मिनरल वाटर हो गया, टीवी हो गया इसका एग्जांपल. ठीक है, मिनरल वाटर हो गया, टीवी हो गया, और देयर आर डिफरेंट मैनी एग्जांपल इन इट. डिटर्जेंट्स हो गया, एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, it is a market structure in which there are many firms selling closely related but unidentical commodity: automobiles, textiles, mineral water and TV, etc. Now I am telling you what are the features of monopolistic competition. This is a very important topic. Features of monopolistic competition. Monopolistic competition के क्या क्या features हैं? Features. Number one, large number of buyers and sellers. Large number of buyers and sellers. खरीदार भी बहुत है, बेचने वाले भी मार्केट में बहुत है. There is a large number of buyers and sellers. We can write there are large number of buyers and sellers in the market. But you can write in the examination this point. Second point, there are large number of buyers and sellers. There are some points: free entry and exit of firms. I can explain in deeply in another video why there is a large number of buyers and why there is a free entry and exit of firms. So I will make different videos for this topic. So there are large number of buyers and sellers. Okay, you can write in monopolistic competition. Second, product differentiated. मीन्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड का मीन्स क्या हुआ? प्रोडक्ट डिफरेंशिएट का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट्स ऑफ द सेलर्स आर डिफरेंशिएटेड. प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड but they are close substitute to each other. भले ही वो प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड बट दे आर वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. मीन्स उनका साइज, कलर, हम ये कहेंगे साइज, कलर, पैकेजिंग आर डिफरेंट बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. उनका साइज, कलर, पैकेजिंग आर डिफरेंट. Size, color, packaging are different but they are close substitute to each other. But they are close substitute to each other. Close
substitute to each other. ओके, तो आपने देखा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मार्केट में बहुत सारे बायर्स भी हैं सेलर्स में, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, मैंने तो दूसरा बताया प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड मीन्स प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। लाइक मैंने बोल दिया, आपको बता दिया, इसमें दे आर शेप साइज कलर आर डिफरेंट बट दे आर व्हाट क्लोजली सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। उनका शेप साइज कलर डिफरेंट होता है बट वो क्या होते हैं, क्लोजली सब्स्टिट्यूट होते हैं। टीवी देखिए डिफरेंट शेप साइज कलर का है बट वो क्लोजली सब्स्टिट्यूट है। आप टीवी का एग्जांपल ले लीजिए, आप डिटर्जेंट का एग्जांपल ले लीजिए, उनका शेप साइज कलर डिफरेंट है बट उनका सब्स्टिट्यूट क्या एक ही है, बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। नाउ 2 points I have explained. Now third point. Third point means shape of demand curve. The shape of demand curve is elastic in nature. The shape of demand curve is elastic in nature. Is elastic in nature. Is elastic in nature because there are more substitute. Because there are more substitute of good. Because there are more substitute of a good. More substitutes of a good. भाई कैसा इसका शेप कैसा होता है डिमांड कर्व का, मोर इलास्टिक होता है बिकॉज दे आर मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ए गुड। अब आइए देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये ओ है, ये एक्स है, ये वाई है, और आपका इसका ए आर देखिए मोर सब्स्टिट्यूट हो गया, और ये इसका एम आर हो गया। दिस इज ए आर, दिस इज एम आर, एंड दिस इज व्हाट आउटपुट। So the shape of the demand curve is elastic in nature because there are more substitute of a good. And average AR and MR is more flatter. You can say more flatter कह दीजिए इसे, more elastic कह दीजिए या elastic कह दीजिए, ठीक है। Now selling cost, fourth point, fourth feature of a monopolistic competition. Fourth feature of a monopolistic competition. Fourth feature selling cost, very important. सेलिंग कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती, इसमें सेलिंग कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है प्रोडक्ट को करने। सेलिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, मीन्स उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चा लगता है उसे सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग, इट इज द कॉस्ट ऑफ, हम क्या कहें, वो खर्चा ऑफ प्रमोटिंग द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ, इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, promoting, it is the cost of promoting the demand for its product. It is the cost of promoting the demand for its product. उस डिमांड को, उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना, खर्चा करना पड़ता है। मीन्स सेलिंग कॉस्ट में वी हैव टू डू ह्यूज एक्सपेंडिचर, हमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा। ह्यूज एक्सपेंडिचर, हमें कहाँ खर्चा करना पड़ेगा, हमें उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स प्रमोशन, लाइक एडवर्टाइजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, एक्सेट्रा। लाइक एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, एक्सेट्रा। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी, हमें उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी, और हमें उसको बेचने के लिए ह्यूज एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, पर्सन सेलिंग करना पड़ेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपने देखा होगा, कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, चाहे वो टीवी का एग्जाम्पल हो, चाहे वो मिनरल वाटर का एग्जाम्पल हो, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जाम्पल हो, आपने देखा होगा कि वो एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी एक मोनोपोलिस्टिक, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट क्या मार्केट में बिके। फिफ्थ पॉइंट, देयर इज ए फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। देयर इज ए फ्री, कोई भी आ सकता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, कोई भी छोड़ के जा सकता है मार्केट। इसका भी मैं आई विल मेक वन सेपरेट वीडियो सो दैट आई विल टीच यू इन डिटेल। ईच फर्म इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन। ईच फर्म is free to take its own decision, Each free entry and exit, each firm is free to take its own decision.
मीन्स कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है मार्केट में। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुछ 2-3 पॉइंट्स में आपको डीपली इसको मैं अपने वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा क्यों फ्री एंट्री होता है, वाई देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। 2-3 पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा, बाद में नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। नाउ देखिए, these are the 5 points, because if the future will become, you have to write these features. Now 6th point of monopolistic competition.